Topic is Coulomb's law in vector form. You already know Coulomb's law in scalar form. So today's topic is Coulomb's law in vector form. So now we'll discuss about this. We have two charges present in the vacuum, and both charge has intrinsic properties, so it will repel to each other because both are positive charges, so it will repel to each other. You can take positive negative also, but here we are taking q1 and q2, both are positive charges. So here F21 and F12 both are represent the force, both are the repelling force. So T1 and 1 to represent force on 2 due to 1, means force on second charge due to first charge and force on first charge due to second charge. So this is the representation of force, and this one is the unit vector. I will explain in this diagram. So as shown in figure, in this xy plane we have taken two charges q1 q2, and from the origin, first position vector of first charge is r1 and position vector of r2 is q2 is r2. So you know already about position vector. So position vector r1 r2 you know already, and also in a scalar form, force between two charges F is equals to k q1 q2 by r square in a scalar form. Okay, so now we'll discuss about for vector form. So we will write F vector is equals to k means 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, and q1 q2 by r square. For vector we will write here unit vector r, because this one unit vector represent the vector vector quantity. For direction we will always use the unit vector. So r vector, unit vector is the vector divided by magnitude of vector. This is the formula. It comes from class 11th. So you can see class 11th vector chapter. So this is the comes from there. So F is equals to k q1 q2 by r cubed and r vector. When unit vector substitute this one formula in here, then it will become okay. Now force on q1 due to q2, we will find force for both one F21 and F12. So here force on q1 due to q2, here see force on q1 means here q1 due to q2 from this. So we will write F force on 1 due to 2. So we can write F is k q1 q2 by r cube, here r cube base of 1 2 because of this. Okay, and r12 vector from this formula you can see here, where r12 is equals to r1 r2. You know already from this we have this side r2 and this side r1, and this side we can take r12. So r12 direction is here this side, so we can write from the vector r2 plus, both are the same direction, so r12 is equals to r1. So for the r12 here, r12 is equals to r1 minus r2 from this way. Okay, so this is the r12 is equals to r1 minus r2 in vector form. Okay, and this is the magnitude. This is the r cube divided base of 1 2, this is the magnitude. So we can write this way, r1 minus r2 magnitude of whole cube a from here. यहाँ से next one, this is the first force, and second one force on q2, here q2 due to q1. So we can write F21 vector F21 is equals to k q1 q2 divided by q21, base will be same, this one base, so base one will be same, and unit vector also base will be same. Okay, so you can write from here, where r21 also you can write from here this one formula. So we can write r21 as it is this way. Both will be different because the direction will be different. So r21 is equals to r2 minus r1. So we can also write this one, r21 whole cube is equals to r2 minus r1 through the magnitude of whole cube. So we can write both the values, we can
when we will substitute from here and there, then formula becomes F12 is equals to K Q1 Q2 divided by magnitude of R1 minus R2 to the power of whole cube and R1 minus R2. After substitution, this one formula becomes, so equation number 1 first, and another one for F21, this one will be formula number equation number second. So here we can write also R21 is equals to R2 minus R1 from we know already, and R21 is equals to, when it will change the arrangement, this one R1 first, after that R2, then we can take minus common, then R1 minus R2 is, so we can write R1 minus R2 becomes this one formula. R1 minus R2 is equals to what? R12. So we can write R12 means R21 is equivalent to minus R12. We can write this. Okay, so F21 we can write in this second equation. We can write this second equation is equals to F21 K Q1 Q2 divided by R2 minus R1 to the power of cube, and also this one negative sign because here R21 is equals to minus R1 minus R2, so we can write here minus R1 minus R2. Okay, with only substitution here, and then we can write F21 also is equals to this one minus sign becomes here, and K Q1 Q2 we can write, when it will change, जिसको चेंज करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड है तो माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं और R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं, नो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको. सो and this one will change R1 minus R2 because minus is came here. So this one formula, total this one formula is F21 is equals to this one formula is from here F12, this one K Q1 Q2 this one formula, ये तुम्हारा है F12 का फॉर्मूला. सो इस पूरे वैल्यू के लिए हम पुट कर देंगे F12, तो ये साइन क्या आ गया माइनस. तो कुल मिला के यहाँ पे हम देखें तो क्या है रिजल्ट, F21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12. इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है तुमको, रिजल्ट मिला कि बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी F21 इज इक्वल्स टू F12 बट विथ नेगेटिव साइन, मीन्स सेकेंड वाला, सेकेंड पर यदि फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स सेकेंड पे लग रहा है उतना ही फर्स्ट पे भी लग रहा है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट. सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो ये इक्वेशन में सिंपल फिर से एक बार समझा देता हूँ कि हमारे पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, और दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है. यदि ऐसा है तो इसको हम लोग इस तरह से इस डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे यूनिट वेक्टर ले करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. दो पोजीशन वेक्टर लिए, दो पोजीशन वेक्टर लेने के बाद फोर्स ये स्केलर फॉर्म का हम लोग को पता है, फिर इसमें क्या किए, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को यूनिट वेक्टर के साथ लिखना होता है. फिर इस तरह से कुछ इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा. फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 यदि लिखेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, सेम रहेगा, बस सब्स्टिट्यूट करना है क्या चीज़, बेस को केवल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अब जानते हैं कि ये कैसे किए थे, यहाँ पे समझ गए होंगे थ्रू द फ्रॉम द वेक्टर फार्मूला. फिर यहाँ से किए वैसे, फिर Q2 ड्यू टू Q1 फिर करेंगे तो फिर कुछ स्टेप से आएगा, फिर उसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा. F12 का फार्मूला जब ये वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक फार्मूला ये वाला मिलेगा. फर्स्ट इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा इसको पुट करने से, और सेकंड इक्वेशन यहाँ से ये सब दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा. दोनों का इक्वेशन से हमको दो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल रख लेते हैं. फिर यहाँ पे देखते हैं कि R21 जो ये फार्मूला है R21 का, कोई भी एक ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम R21 ही लें, R12 भी ले सकते हैं. तो R21 ये फार्मूला ले लिए, बस इसमें क्या किया, अरेंजमेंट को चेंज किए. अरेंजमेंट को चेंज करने से माइनस साइन क्या होगा, कॉमन आ गया. कॉमन आने से हम लोग क्या यहाँ यहीं से समझ में हमको आ गया कि यूनिट वेक्टर ही एक दूसरे का अपोजिट है. तो यूनिट वेक्टर जब एक दूसरे के अपोजिट हमको मिल रहा है, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है बट सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ से क्लियर हम लोग पुट करने से क्या रिजल्ट मिलता है कि फोर्स भी एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा. तो हमको यहाँ फाइनली रिजल्ट मिला कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल एंड अपोजिट. मीन्स फोर्स ऑफ सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट एंड फोर्स ऑन फर्स्ट एंड ड्यू टू सेकेंड बोथ आर इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट. सो वी नो ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. So it is always Newton's third law. Okay, so this is all about Coulomb's law in vector form. Now we'll discuss about some numerical problem from this theory. So now we have one question is here, three identical charges Q is kept on corners
3 identical charges Q. Identical charge Q is kept on corners of equilateral triangle of side A. Then calculate net force on any one corner of triangle. एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास सभी चार्ज जो है सो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स सेम चार्ज है सब जगह पे। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव 60 डिग्रीज, एवरी एंगल विल बी 60 डिग्री, और साइड दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है, साइड्स यहाँ पे ये है। तो बोल रहा है कि यदि ऐसा है तो फोर्स किसी भी एक कॉर्नर के लिए फाइंड करें। तो देखो इस कॉर्नर को लेते हैं, तो इस कॉर्नर में जाएगा तो ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि बोथ आर रिपेल टू ईच अदर। तो इस पॉइंट पर फाइंड करें तो ये चार्ज लगाएगा इधर जाएगा डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इस चार्ज से देखेंगे तो इधर जाएगा। ये दोनों का यदि फोर्स हमको मिलेगा तो एक मान लो इसको F1, इसको मान लो F2, दो फोर्स है हमारे पास, और टोटल जो रिजल्टेंट मिलेगा तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये टोटल F मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली यहाँ पे तुमको कुछ एंगल दिख रहा है, टोटल एंगल मिल रहा है कितना, दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, वो वाला रिजल्टेंट फार्मूला पता होगा कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A² + B² + 2AB cos थीटा। ये हम लोग को फार्मूला पहले से ही पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, हमको यहाँ पे F निकालना है, तो F मिल जाएगा F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ऐसा यदि मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फार्मूला निकाल लेंगे, F1 निकालेंगे। तो F1 निकालेंगे तो ये मान लो F1 ये है मेरा, तो F1 निकालेंगे तो कुछ इतना वैल्यू आएगा, उसको हम लोग x मान लेंगे। F2 निकालेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, जिसको फिर क्योंकि दोनों सेम निकल रहा है तो दोनों का वैल्यू x मान लेंगे, बिकॉज आइडेंटिकल चार्ज है तो दोनों का फोर्स भी ऑब्वियसली सेम होगा। तो दोनों का फोर्स सेम है, डिस्टेंस सेम है, बिकॉज इसलिए फोर्स भी दोनों का सेम है। यदि दोनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, देख सकते हो, F1 x², F2 ऑल्सो x² एंड दिस वन 2x × x cos कितना 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये 2x² हो गया प्लस 2x² और दिस वन 2x² एंड cos 60 डिग्री मीन्स 1/2, वो 2 कैंसिल, तो मिल जाएगा हमको कितना 2x² + x² मीन्स √3x²। अब 3 को क्या करो, 3 को छोड़ दो, x² का एक बाहर निकल जाएगा तो √3x इसका आंसर आया। अब तुम x की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो, x का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है kq²/a², यही निकाले थे हम लोग, इसलिए आपका f जो टोटल निकला, टोटल f जो निकला वो कुछ इतना निकलेगा। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी